Assalamualaikum. I am Fakhra Hussain. My roll number is EP17700033. Our topic which we have to be assigned is the effect of diuretic in animals. And my topic which I just want to be discussed or covered is the effect of ADH, means anti-diuretic hormone in the diuretic activity. So, before starting my topic, I just want to go through that what are the diuretics. You know that diuretics are a class of drugs that increase the flow of urine and it also called water pills. मीन्स डायूरेटिक्स को हम वाटर पिल्स भी कहते हैं और ये क्या करते हैं हम यूरिन की फ्लो को इंक्रीज करवाते हैं. सिमिलरली इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये रिमूव करवाते हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस को हमारी बॉडी में से ताकि वो एलिमिनेट हो यूरिन में. The diuretics have their effect by reducing total body sodium chloride content. Here we have the question which we have to be arise is why we use diuretics. लिहाजा आप ये जानते हैं कि जो डायूरेटिक्स है इनका जो इफ़ेक्ट है यानी इनका जो एक मेन फंक्शन है या मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो ये है कि डायूरेटिक्स हमारे ब्लड में से सॉल्ट और वाटर को रिमूव करवाते हैं, एलिमिनेट आउट करवाते हैं और ज़्यादातर ये हेल्प करते हैं कि हमारी जो किडनी है वो रिलीज़ करे सोडियम को यूरिन में. एंड sodium takes with the water from your blood, decreasing the amount of fluids flowing through your veins and arteries. And this is reduce the blood pressure. Here the other question which we have to be arise, what are the indications of the diuretics? Here the indications of diuretics are the given. Include hypertension, chronic edema, prevention of calcium, kidney stone, osteoporosis, nephrogenic, diabetic, etc. You see that here the thiazide diuretics are included. What are the thiazide diuretics? These are the important class of the thiazide of the diuretics. Mechanism of the action which is to be given. It acts by inhibition of sodium chloride cotransporters on the luminal membrane of distal convoluted tubule. These are the main mechanism of the action of the thiazide, which are the important class of the diuretics. The efficacy which we have to be given is the moderate 5% natriuresis, and the drug, the most important drug which have to be discussed is the chlorothiazide and hydrochlorothiazide. These two class of the drugs are the most important for thiazide diuretics. You have to see some specific drugs which are given in the class of thiazide diuretics. Include these specific drugs include chlorothiazide, यानी हमारे पास जो है वो ये thiazide की क्लास में ये इम्पॉर्टेंट जो है वो ड्रग्स हमारे पास आते हैं जिनमें क्लोरथायाजाइड है, क्लोरथैलिडोन, इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथैलिडोन एक्सेट्रा. दीज ड्रग्स विच हैव टू बी गिवन and these are the important comments regarding these drugs. Now these are the some adverse effect which have to be seen in thiazides. The important adverse effect which have to be seen is hyperkalemia. यानी कि हम thiazide diuretics में जो हमें ज़्यादातर adverse effect या side effect जो मिल रहे होते हैं वो hyperkalemia, ये ज़्यादा जो है वो देखा जाता है. अब ये जो हाइपरकैलेमिया है इनकी क्या एक्चुअली करवाते क्या हैं, ये पोटेंशिएट करवाते हैं डिजिटालिस टॉक्सिसिटी को, जो आप यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन वाली लाइन में देख रहे हैं. ठीक, उसके बाद क्या है कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी करवा सकते हैं, मतलब कि एडवर्स साइड इफ़ेक्ट में ये बात इंक्लूड की जाती है. डिहाइड्रेशन, अच्छा डिहाइड्रेशन से रिलेटेड ये बात जो है वो मेंशन है कि लीडिंग टू हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटिक. Similarly, hypercholesteremia will also be included in the adverse effect and the side effects of the thiazide diuretics. The drug in drug interaction, we have to see that the non-steroidal anti-inflammatory drugs reduce diuretics efficacy. मीन्स के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो डायूरेटिक्स की एफिकेसी को रिड्यूस करवा देते हैं. दीज आर इंक्लूड्स इन द ड्रग इंटरएक्शन. Similarly, the beta blockers, these beta blockers potentiate hyperglycemia,
hyperlipidemias. In the last, the corticosteroids which we have to be given is it enhance hypokalemia. Now you have to see the effect of anti-diuretic hormone in diuretics. You know that ADH also called vasopressin. It's a hormone made by the hypothalamus. यानी हम ADH का जब हम इफेक्ट देखते हैं तो ADH को आप जानते हैं कि हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, और इनका फंक्शन क्या है कि ये वो हार्मोन है जो हमारा हाइपोथैलेमस के ज़रिए से बन रहा होता है ब्रेन में, और वो स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में. अब एक्चुअली अगर हम इनका फंक्शन देखें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, तो ये करवाते क्या हैं, ये क्या करवाते हैं कि ये किडनी को एक्चुअली बता रहे होते हैं कि कितने अमाउंट में जो वाटर है वो कंज्यूम हो चुका है. इसके अलावा ADH रेगुलेट्स करवाते हैं और बैलेंस करवाते हैं अमाउंट ऑफ वाटर को हमारे ब्लड में. सिमिलरली इट लीड टू डिटेस्ट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मोर कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि इसके नतीजे में जो है एंटी डाययूरेटिक का जो इफेक्ट होगा वो एंटी डाययूरेसिस होगा, जिसके नतीजे में या फिर एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूरिन है वो कॉन्सनट्रेटेड होगा और रिड्यूस करवा देगा यूरिन आउटफ्लो को. These are the effect. Now the purpose of ADH level testing, यहाँ पे जो है वो डिस्कस की गई है, एक लिमिट बताई गई है ADH के जो है वो ये लिमिट मेंशन होना चाहिए, यानी कि ये रेंज आनी चाहिए ADH की 1:5 pg/ml. अगर इस रेंज से अमाउंट ज़्यादा हो गया, यानी कि ADH का लेवल अगर इस रेंज से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मीन्स टू मच हाई और टू मच लो, तो दीज टू थिंग्स कैन बी काउज बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो ADH का लेवल है वो इस नॉर्मल रेंज के अंदर आनी चाहिए. और मोस्टली होता ये है कि जो डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में ज़्यादातर जब इसकी टेस्टिंग की जाती है ADH के लेवल की, तो वो इस रेंज के अंदर आ रही होती है. और मोस्टली यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लेवल इसका हाई हो जाए, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ADH का लेवल जो है बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं. You have to see that the diagrams of the kidney. Here you have to see the effect of the ADH, which is called vasopressin, and it is released from the posterior pituitary gland. And you have to also see that how the aldosterone are affecting on the kidney and perform the function of the antidiuresis. Now these are the important topic which I would have to be discussed, and this topic have to be taken from the research articles which I will discuss. Study on the nature and mechanism of the diuretic activity of the opioid analgesic ethyl ketocyclozocine. Now इथाइल कीटोसाइक्लोजोसिन, इसका क्या है कि ये एक ओपियोइड एगोनिस्ट है और ये कैपेबल होते हैं कि वो इंटरैक्ट करें सर्टन ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ. यानी हमारे पास जो है वो ओपियोइड एगोनिस्ट हैं, इम्पॉर्टेंट ड्रग है. इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो इथाइल कीटोसाइक्लोजोसिन है ये हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स पे जाके क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं और ये ओपियोइड एगोनिस्ट के तौर पर बिहेव करते हैं. तो एक्चुअली इस रिसर्च आर्टिकल में जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे इस ड्रग का इफ़ेक्ट को, कि ये जो है वो किस तरीके से ADH के लेवल को जो है वो लो कर रहा होता है या फिर सप्रेस कर रहा होता है और यूरिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करवा रहा होता है. सिमिलरली हम इसी बेस पे हम कहते हैं कि चूँकि ये ब्रेन रिसेप्टर पे जाके, जिस रिसेप्टर पे जाके ये एक्ट करता है वो होता है कैपा एगोनिस्ट. ठीक है, जिसके नतीजे में क्या है कि डोज डिपेंडेंट इंक्रीज इन यूरिन फॉर्मेशन इन कॉन्शियस रैट, और EKC behave like a water diuretics. The diuretics activity was completely abolished by the naltrexone, which is opioid antagonist. Diuretic activity of this nature could have been medicated by an effect of the drugs on ADH secretion of exogenous ADH, attenuate the elevations in urine volume caused by the cyclozocine. Now here the general procedure which have to be discussed. You know that the some different the metabolic cage you have to know, and you have to be used in the lab. मीन्स के हमने इस मेटाबॉलिक केज के थ्रू हमने अपनी लैब में भी जो है वो जो रैट है हमारा उसकी यूरिन की जो है वो यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही थी इस मेटाबॉलिक केज के थ्रू हमने डिस्कस की थी, या फिर हमने फाइंड आउट किया था अपनी लैब में भी.
तो यहाँ पे जो हमारे पास जनरल प्रोसीजर आता है वो है मेटाबॉलिक केज का, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो माइस है जिसमें इसकी वेट लिख दी गई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ग्राम यूज़ किया गया, और फिर क्या है कि फिर उसके ज़रिए से हमने जो है वो यूरिन की वॉल्यूम को मॉनिटर किया। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं होता। हम रैट को डायरेक्ट जिस तरीके से हमने लैब में परफॉर्म किया था वैसे ही यहाँ पर भी जो है वो परफॉर्म किया जाएगा जनरल प्रोसीजर में, जिसमें रैट जो था उसे मेटाबॉलिक केज में रख दिया जाएगा और फिर जो है वो एक्सक्रेटेड यूरिन को जो है वो फनल आउट कर लिया जाएगा 15 ml ग्रेजुएट सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में। और फिर यूरिन की वॉल्यूम को जो है वो कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि कॉम्युलेटिव यूरिन वॉल्यूम को रिकॉर्ड करेंगे एक डिजिग्नेटेड टाइम इंटरवल में, और वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी हर 30 मिनट में। सिमिलरली अगर इसके बाद जो है वो अगर हमें वैसोप्रेसिन यानी ADH के लेवल को हमें मॉनिटर करना होगा, और इसको मॉनिटर करने के लिए हमें अपनी रैट को स्टेनलेस स्टील केज में रखनी होगी, और हम ये उस वक्त करेंगे यानी कि अपने प्रोसीजर यानी जो हमारे ट्रीटमेंट वाला प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करने से 1 घंटे पहले हमने ये काम करना होगा, ताकि हमारा जो माइस है ताकि हमारा जो रैट है वो मतलब कि एडजस्ट कर सके न्यू इन्वायरमेंट को। नाउ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, यहाँ पे हम जो है वो अपने रैट को ड्रग्स देंगे, और हम जो ड्रग्स दे रहे हैं अपने रैट को उनमें हमारे पास EKC आ रहा है। व्हाट इज EKC यू नो दैट इथाइल कीटोसाइक्लोजोसिन, दीज आर द ड्रग्स व्हिच इज नोन एज ओपियोइड एगोनिस्ट, यानी कि व्हिच बिहेव्स लाइक अ ओपियोइड एगोनिस्ट। हमने क्या किया सिंपल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में, हमारे पास जो EKC जो है वो हमने डोज जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया अपने रैट को एटलीस्ट 0.013 से 3.0 मिलीग्राम पर kg, और फिर देन हमने मेजर किया यूरिन की फॉर्मेशन को 5 आवर में। इसके अलावा जो एक और स्टडी की गई जिसमें यहाँ पे डिस्कस की गई इस बात को, जिसमें ओपियोइड एंटागोनिस्ट नैल्ट्रोक्सोन को एडमिनिस्ट्रेट किया गया, और किसके साथ सबकुटेनियसली हमने एडमिनिस्ट्रेट किया था, और किसके साथ एडमिनिस्ट्रेट किया था, एक जो है वो EKC के साथ देंगे, और फिर एक विदाउट जो है वो EKC के हम नैल्ट्रोक्सोन को देंगे टू डिटरमाइन द वेदर द डायूरेटिक एक्टिविटी वुड बी इनहिबिटेड, यानी कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि आया कि जो हमारा डायूरेटिक एक्टिविटी है वो इनहिबिटेड हो सकता है या नहीं। इसके अलावा हमें क्या करना है इन दी एंड, इन दी एंड यानी कि सिमिलरली हमारे पास जो कंट्रोल रैट्स होगा वो उसे हम आइसोटोनिक सलाइन देंगे सबकुटेनियसली, यानी कि हम उसे आइसोटोनिक सलाइन सबकुटेनियसली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, और फिर ये सारे प्रोसेस यानी कि एक ट्रीटमेंट और फिर एक कंट्रोल की देने के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है, यानी अपना जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जो मेन ऑब्जेक्ट है वो करना है हम, यानी रिलेशनशिप देखनी है किसके दरमियान, प्लाज्मा ADH और यूरिन वॉल्यूम का। किसका यूरिन वॉल्यूम, जो हमारा एक होगा ट्रीटेड रैट्स कॉन्सेंट्रेटेड जिसको हमने EKC एगोनिस्ट दिया है, वो उसका हमें कंपेयर करवाना है उस एनिमल के साथ या उस रैट के साथ जिसके अंदर डायूरेसिस का प्रोसेस प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रेशन के ज़रिए से। द इफेक्ट ऑफ EKC ऑन प्लाज्मा वैसोप्रेसिन वॉज इन्वेस्टिगेटेड। नाउ इन दी लास्ट दी कंक्लूजन, ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है वो ये कंक्लूड की गई कि ये यानी कि ये देखा गया कि जो EKC था जिसे हम कह रहे हैं कि ओपियोइड एगोनिस्ट है, इसने क्या करवा दिया, जो हमारी माइस थी जब हमने अपने रैट को ऑब्ज़र्व किया, जब हमने अपने रैट को देखा तो उसने क्या है कि EKC ने इन्हांस करवाया यूरिन की फॉर्मेशन को और सप्रेस करवा दिया प्लाज्मा वैसोप्रेसिन के लेवल को। तो और इसके नतीजे में क्या हुई कि जो EKC था, जब EKC ने ये अपना फंक्शन परफॉर्म किया तो इसके नतीजे में हमारे पास ये बात ऑब्टेन हो गई कि EKC जो है वो वैसोप्रेसिन के लेवल को सप्रेस करवाता है। Now I would have to be discuss the model for testing of activity of diuretics. Here we include in vivo technique. In vivo technique, I would have to be discuss the micropuncture technique in the rat. So in micropuncture technique in the rat, the purpose is that the micropuncture technique have been applied to the direct investigation of the effect of the diuretic on single nephron function। यानी कि हम इस micropuncture technique के थ्रू हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो हमारा rat है उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट जो है वो जो भी चेंजेस आ रही होती है ट्यूबुलर फ्लूइड्स में और इसके अलावा रिएब्जॉर्प्टिव रेट और इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंजेस आ रही होती है हम वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपल हमारा जो भी माइस होता है या रैट होता है उसे जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं और फिर करने के बाद हम सिंपल उसे जो है वो एनेस्थेसाइज करते हैं, यानी अपने रैट को एनेस्थेसाइज करने के बाद हम क्या करते हैं कि उससे
थर्मोस्टैटिकली हीटेड टेबल में रख देते हैं और फिर जो है वो रैट की जो कैरोटिड आर्टरी और जॉगुलर वेन होती है उसको हम कैनुलेट करवाते हैं ताकि हम ईजिली ब्लड सैंपल को, ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड कर सकें। और जो रैट की लेफ्ट किडनी होती है वो केयरफुली एक्सपोज होती है फ्लैंग इंसिजन के ज़रिए से, यानी कि फ्लैंग इंसिजन के ज़रिए से हम एक्सपोज करवाते हैं रैट की लेफ्ट किडनी को, जो एम्बेडेड होती है स्मॉल प्लास्टिक वेसल्स के ज़रिए से, और उसमें कॉटन वूल्स की भी उसके साथ अटैच होती है। द यूरेटर इज कैन्युलेट एंड द रिएक्ट टेम्परेचर monitored continuously. Similarly, by the help of this technique, we have to be collect the direct collection of the tubular fluid sample from proximal and distal tubule is carried out or by using a micro manipulators and microscopic observation. So these are the parameters. By the help of these parameters, we have to be determine the GFR, fractional delivery of waters, sodium, potassium in proximal and distal tubule in urine. Now in the last, these are the references which I would have to be discuss. Thank you.